Hello friends, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cyber law and ethics. In the previous lectures, we have studied about the cyberspace, cybercrime and the cyber law for cybercrime. And in particularly previous lecture, we studied about the amendments and the objective of the IT Act 2000. Means ये जो साइबर क्राइम्स अकर हो रहे हैं उनके लिए कुछ साइबर लॉ बनाया गया है टू प्रिवेंट सम साइबर क्राइम. So for that, first law is passed in the year of 2000 and the name is Indian Act 2000. So we have shown कि IT Act 2000 में कौन से लॉज है, कौन से सेक्शंस है एंड अकॉर्डिंग टू द क्राइम उनके लिए क्या पनिशमेंट्स है, उनके लिए क्या पेनल्टीज है. And in previous lecture, we have shown कि after creating this act, IT Act 2000, what are the changes come in IT Act? So major change occur in the duration between 2008 and 2009 regarding some sections, and they also put up some new sections for that. So now we know that because of the widely use of the internet or cyberspace, cyber crimes are at high peak कि because of this widely use of the internet हमारा जो cyber crime का जो issue है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है. So to prevent that, we make some cyber laws. So based on that cyber laws, हमारे जो documents होते हैं, अभी हमारा सारा ट्रांजेक्शन डिजिटली हो गया है कि आप एक जगह से दूसरी जगह डिजिटली डेटा ट्रांसफर कर रहे हो. माइट बी पॉसिबली कि आप कहीं पे कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट है उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंटल डेटा और रिगार्डिंग टास्क, और कोई बड़ा कंपनी है जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, एप्पल है, so they are also transferring that important documents through digitally. तो जो वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है उसमें उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर, so they have invented the concept of digital signature. So you guys have a question ki what is a digital signatures and what is an electronic signature? Why you know how to recognize the main difference between them? Where we can use these digital signatures? And if some people are going to use this digital signatures or an electronic signatures, they are got confused between the two of this and they don't understand the main characteristics of digital signature and electronic signature. So in this lecture, we are going to understand the concept of the digital signature and how it is useful. So first of all, digital signature versus electronic signature. So digital signatures and electronic signatures, they both are the synonyms of each other. Means you can say कि दोनों को एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर बोल लो या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोल लो, बट that is not fully corrected because not all types of the electronic signatures have the same security features as truly digital signatures. Might be possible कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है वो डिजिटली सिग्नेचर्स प्रोवाइड कर दे, बट जो सिक्योरिटी डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते. So don't get confused between this. We'll study how these both are different and how they are impacting our lives, or what are the different characteristics for both of each. Ki what is digital signature and what is electronic signature. So in terms of that, we can justify ki which signature we should use, and they also have each one of has an some associated risk in terms of the security, or you can say ki in terms of privacy information, or you can say it ki compliance with the law. So which signature we should use and how we should use this, we are going to study that.
So what is digital signature? If you ask in the definition term कि what is digital signature, so we can say कि a digital signature which should not be confused with a digital certificate is a mathematical technique used to validate the authenticity and the integrity of a message, software or a digital document. So दोनों चीजों को कंबाइन मत करो कि व्हाट इज डिजिटल सर्टिफिकेट एंड व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, दे बोथ आर डिफरेंट. डिजिटल सिग्नेचर्स को आप बोल सकते हो इट इज वन काइंड ऑफ एन टेक्निक जो आप यूज करते हो, जो आपके मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके ऊपर एक ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी को आप यूज कर सकते हो. एज ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहा है विद द डिजिटल सिग्नेचर. तो डिजिटल सिग्नेचर को एक की भी कंसिडर कर सकते हो. मीन्स कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किया, तो अगर उस पर मैंने डिजिटल उसके ऊपर मैंने डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई किया है, दैट मीन्स कि मैंने उसको एक कोड के साथ बांध दिया है, कि उसको एक की दे दिया है कि जब भी सामने वाले को वो रिसीव होगा, जब वो सामने वाला वो कोड एंटर करेगा डिजिट्स में, तभी वो जाके ओपन हो पाएगा और फिर वो उसको यूज कर पाएगा. सो वी कैन से दैट कि हमारा जो मैसेज है या हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस पे हमने क्रिप्टोग्राफिक मेजर्स अप्लाई किए हैं. सो जो मैसेज रिसिपिएंट को मिलेगा उसमें तीन चीजें मेनली हैंडल हो रही है, कि तीन चीजें वो देखेगा कि क्या क्या हो रहा है. तो फर्स्ट वन इज कि ऑथेंटिकेशन मीन्स दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज इज रियल, कि जहां से मैसेज आया है, जहां से सेंड हुआ है, वो पर्सन सही पर्सन है, ऑथेंटिकेटेड पर्सन है. सेकेंड वन इज दैट द नॉन repudiation means that the sender cannot deny that they send the message. अगर किसी authenticated person ने आपको मैसेज भेजा है, आपको एक मैसेज किया है या आपको फाइल भेजा है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन मना नहीं कर सकता कि उसी ने ये मैसेज भेजा था. And the third one is ki integrity. Integrity means that your message has not been altered since it was sent. मीन्स कि आपने जो मैसेज भेजा है, मतलब जो सेंडर ने जो मैसेज भेजा है और रिसीवर को जो मैसेज रिसीव हुआ है, वो दोनों सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है. सो दैट इज इंटीग्रिटी. तो डिजिटल सिग्नेचर की वजह से क्या होगा, आपकी ये तीन चीजें मेंटेन होगी. वन इज ऑथेंटिकेशन, वन इज नॉन रेपुडिएशन एंड थर्ड वन इज इंटीग्रिटी. ये तीन चीजें आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसफर में और बोल सकते हो कि आपका जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है उसमें सिक्योर होगी. So this is the structure of digital signature. मीन्स कि सपोज एक साइड सेंडर है, दूसरी साइड रिसीवर है. सपोज सेंडर इज एमिसर एंड रिसीवर इज ओवर द अदर हैंड. तो हम एक फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं वहां से, राइट, और उस फाइल में हमने लिखा है हेलो. तो यहाँ से सेंडर ने हेलो सेंड किया और रिसीवर ने हेलो रिसीव किया. बट इन बिटवीन दैट क्या होगा कि आपका जो ये फाइल है उसको मैंने एक की के साथ, एक कोड के साथ सिक्योर कर दिया है. तो अगर कोई और थर्ड पार्टी इसको एक्सेस करने जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा. सेकेंड वन कि ये जो प्राइवेट पासवर्ड्स है यहाँ पे जो यूज हुआ है, ठीक है, कि सेंडर की साइड से वो अपनी एक प्राइवेट की सेंड करता है, मीन्स सीक्रेट पासवर्ड सेंड करता है, सेंडर की ओर से वो जाएगा, फिर वो फाइल पे लगा होगा, और जब रिसीवर को वो मिलेगा तो यूजिंग पब्लिक पासवर्ड वो उसको एक्सेस कर पाएगा. मीन्स लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल कि जैसे हमने बोला कि एक साइड सेंडर है, एक साइड रिसीवर है, ठीक है. अभी हम एक फाइल भेज रहे हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर डेटा है. कंसिडर इट कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स है. सो व्हाट हैपन, जब भी वो डेटा पास ऑन होगा, सो ये जो फाइल पास ऑन होगा वहां पे इसके साथ एक प्राइवेट की अटैच्ड होगी. प्राइवेट की मीन्स कि ये प्राइवेट की सिर्फ सेंडर को पता होगी कि वो प्राइवेट की उसने क्या रखी है. तो उस प्राइवेट की को और उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि हमने इनक्रिप्टेड डेटा फाइल भेजा है. देन वो कन्वर्ट होगी आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट में, डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट में. डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट में क्या होगा, वहां पे डिफरेंट टाइप्स के अल्गोरिदम्स यूज होता है. तो यहाँ पे हैश अल्गोरिदम उन्होंने यूज किया होगा टू इनक्रिप्ट द फाइल, कि आपने जो सेफली फाइल सिक्योर कर दिया, उस पर डिजिटल साइन कर दिया है कि कोई और उसको नहीं देख सकता.
तो उसके लिए हमने यहाँ पे हैश एल्गोरिदम का यूज किया। तो whenever the receiver receives that file, right, कि उसको अभी वो फाइल मिला, उन्होंने वो फाइल रिसीव कर लिया, अपने सपोज मेल किया था तो उसको मेल मिल गया, उसको फाइल मिल गया, जब भी वो उसको डिक्रिप्ट करेगा, मतलब ओपन करेगा, उस टाइम पे वो क्या करेगा, उसकी खुद की जो पब्लिक की होगी, राइट, उस पब्लिक की का यूज करके वो उसको एक्सेस कर पाएगा, और उसके लिए कुछ हैश वैल्यूज का भी यूज करेगा वो। तो हमने यहाँ पे हैश एल्गोरिदम यूज किया था, उस एल्गोरिदम के साथ हैश वैल्यू का कंसेप्ट है, उस हैश वैल्यू के कंसेप्ट को ही एग्जीक्यूट करेगा जब भी वो यहाँ से पब्लिक की अप्लाई करेगा, राइट। तो अगर वो पब्लिक की करेक्ट होगी, मीन्स यहाँ से जो भी पर्सन ए था, उसने जो डेटा सेंड किया था, उसको उसकी पब्लिक की अलग है और ये जो रिसीवर है उसकी पब्लिक की अलग है, बट उन दोनों को एक दूसरे की पब्लिक की पता है, बट दोनों को एक दूसरे की प्राइवेट कीज के बारे में कुछ नहीं पता। तो जब भी यहाँ से ये रिसीवर उसकी पब्लिक की यूज करके जो फाइल हमने भेजा था उसको डिक्रिप्ट करेगा, मीन्स उसको ओपन करेगा यूजिंग दैट पब्लिक की, एट दैट टाइम अगर आपका सिग्नेचर वैलिडेट होगा, मीन्स करेक्ट होगा, कि जो यहाँ से वैल्यूज जो भेजी गई थी, यहाँ पे जो हमने सेट किया था, और वही वैल्यूज यहाँ पे एंटर करो, तभी जाके वो आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा, और तभी हम बोल सकते हैं कि सिग्नेचर इज वैलिड इफ द टू हैश वैल्यूज मैच, कि सेंडर ने जो हमें डेटा भेजा था उसकी जो की थी और रिसीवर को जो डेटा रिसीव हुआ है उसके वहां पे जो की है, उनके अकॉर्डिंग वो अगर ओपन हो जाएगा करेक्टली, और वही फाइल होगा, कि सपोज मैंने हेलो मैसेज भेजा था, तो सेंडर की साइड भी हेलो होगा, रिसीवर की साइड भी हेलो होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट एग्जैक्टली और सही से अप्लाई हुआ है, राइट। तो डिजिटल सिग्नेचर वर्क्स लाइक दिस, और यू कैन से कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर है उसका की पार्ट क्या है। सो डिजिटल सिग्नेचर का की पार्ट है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, बट वो दोनों जो हमारा सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसके जैसे वर्क नहीं करते। हमारा सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मीन्स कि आप कंसिडर कर सकते हो कि किसी कोई पर्सन अगर एटीएम जा रहा है और मशीन से कुछ पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो उसके लिए वो अपना क्या पिन एंटर करेगा, मीन्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करेगा। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करने के बाद वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट पे क्लिक करता है, राइट। तो वो क्या हुआ, दैट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। या तो वो एक्सेप्ट सिलेक्ट कर सकता है, या तो डू नॉट अग्री सिलेक्ट कर सकता है, या तो टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स, इन तीनों ऑप्शंस जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करता है विड्रॉ करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। बट ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हुआ कि आपको खुद का पासवर्ड पता है और आप पर्टिकुलरली उस मशीन पे जाके वहां से कुछ विड्रॉ कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो। तो ये हुए आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, बट आपके जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है दैट आर द डिफरेंस फ्रॉम द सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ठीक है। एंड उनके जो फीचर्स है दैट आर नॉट द अगेन सेम, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है एंड डिजिटल सिग्नेचर है, उनकी जो फीचर्स है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिफरेंट है, दे आर नॉट द सेम, मीन्स इट इज does not have the same features as a digital signature for electronic signature, आप ये बोल सकते हो। so now let's see how the digital signature works। so जैसे हमने previously देखा कि वो पब्लिक की एंड प्राइवेट की का यूज करके डेटा इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट कर रहा था। आप बोल सकते हो कि डिजिटल सिग्नेचर्स आर बेस्ड ऑन द पब्लिक क्रिप्टोग्राफी विच इज आल्सो नोन एज एन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, कि हमारा जो फाइल है, हमारा जो डेटा है, वो आपकी पब्लिक की एंड प्राइवेट की का यूज करके इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट होता है। सो वो उसके बेस पे वर्क करता है। एंड अगेन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी उसको असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर जो प्रोसेस करता है, जो इस डिजिटल सिग्नेचर का जो एल्गोरिदम है वो 3 स्टेप्स फॉलो करता है। फर्स्ट वन इज
creation of two keys that are the mathematically linked means कि उसके लिए जो algorithm यूज हुआ है उसकी जो प्राइवेट की है वो और जो सामने वाले की पब्लिक की है वो दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियसली देखा कि यहाँ से जो सेंड हो रहा था उसका जो प्राइवेट पासवर्ड था वो सेंडर ने रखा है, बट जब यहाँ रिसीवर की साइड वो आ गया तो वो उसका पब्लिक पासवर्ड यूज कर रहा है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इजीली टुगेदर वर्क कर पाए ऐसी होनी चाहिए। सेकेंड वन इज की सिग्नेचर। तो इन द सिग्नेचर बोल सकते हो दिस इज द algorithm produces a signature when a private key and the message that is being signed is received। कि सामने वाले रिसीवर को वो मैसेज करेक्टली रिसीव हुआ है एंड विथ द प्राइवेट की कि सेंडर की जो प्राइवेट की थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो भेजा है और उन्होंने करेक्टली वहां पे रिसीव किया है। अभी उन्होंने डिक्रिप्ट नहीं किया है, उनको सिर्फ वो मैसेज रिसीव हुआ है विद द प्राइवेट की। तो दैट इज सिग्नेचर एंड द थर्ड स्टेप इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वर्क करेगा आपकी रिसीवर की साइड। जब भी रिसीवर उसको ओपन करेगा तो उसकी पब्लिक की के साथ वो उसको ओपन कर पाना चाहिए और उसमें ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो ये तीन फैक्टर्स आपके डिजिटल सिग्नेचर को परफेक्टली वर्क करने के लिए इम्पोर्टेंट है। वन इज क्रिएशन ऑफ द टू कीज दैट आर मैथमेटिकली लिंक्ड, सेकेंड वन इज सिग्नेचर एंड थर्ड वन इज वेरिफिकेशन। एंड टू सपोर्ट दिस थ्री स्टेप्स कि आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए वी यूज सम डिफरेंट टाइप ऑफ द algorithms। so for that here we are using the hash algorithm, and with the hash concept we are also using hash table। हैश कंसेप्ट और हैश एल्गोरिदम इज वर्क लाइक कि आपका जो डेटा होगा उसको वो एक लाइन में डेटा स्टोर करता है, क्यू में डेटा स्टोर करता है इन द टेक्निकल टर्म्स। और इट माइट बी पॉसिबल कि आपका जो डेटा है वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में हो, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, वो इमेजेस के फॉर्म में हो। तो उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइप का हैश टेबल यूज करना रहेगा एंड उनको इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करना होगा आपके आपको जो भी डेटा ट्रांसफर करना है उसके लिए। तो जो आप डिजिटल सिग्नेचर है उसको यूज कर रहे हो। सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस कि टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर द सिग्नेचर सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ वन वे हैश ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा दैट नीड टू बी साइंड। means the private key is used to encrypt the hash and the encrypted hash together with the information is digital signature। मीन्स जो भी हम ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए हम एक पॉसिबिलिटी है कि हम एक सिग्नेचर सॉफ्टवेयर यूज करें जिसके थ्रू हम ये डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करवाएंगे। तो वो वन वे हैश ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे हम क्रिएट करेंगे, उसको साइन करवाएंगे और उसके अंदर हम पब्लिक की एंड प्राइवेट की इंक्लूड करेंगे। so that is the concept of डिजिटल सिग्नेचर की हाउ वी आर यूजिंग इट। फिर इसके वजह से हमारे डेटा पे क्या चेंज होगा, राइट? कि अगर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो जैसे मैंने बोला कि वो जो आपका मैसेज पास ऑन हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपके डेटा में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आपके जो कैरेक्टर्स अगर कोई मैसेज पास ऑन हो रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसके रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स आपकी जो आइडेंटिटी है दैट मस्ट बी वैलिडेटेड आइडेंटिटी। आप उसको पब्लिक की के थ्रू अगर डिक्रिप्ट कर रहे हो फिर भी आपकी आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। सेकेंड वन इज कि अगर आप डिक्रिप्टेड हैश फंक्शन यूज कर रहे हो सामने की साइड जब वो डिक्रिप्टेड हैश फंक्शन का यूज होगा हमारी इंटीग्रिटी पे या हमारी ऑथेंटिकेशन पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। whatever we are using प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों के साइड इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन मेंटेन होना चाहिए। थर्ड थिंग हमने देखा था कि नॉन रेप्यूडिएशन। तो
digital signatures make it difficult for the signatory of denying having the signed something, assuming that their private key has not been compromised, as the digital signature is unique both for the document and the signatory, and they go together. आपका जो डिजिटल सर्टिफिकेट का कंसेप्ट है, डिजिटल सर्टिफिकेट का कंसेप्ट है, उसमें क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होगा और वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आपका डिजिटल सिग्नेचर होल्ड कर रहा होगा। सो उस डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपकी सर्टिफिकेट ऑथोरिटी होनी चाहिए, आपकी पब्लिक की एंड प्राइवेट की जो यूज की है उन दोनों के बीच में लिंकिंग होनी चाहिए, ताकि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन से किसी दूसरे स्पेसिफिक पर्सन को अगर हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो उस सर्टिफिकेट ऑथोरिटी के थ्रू उसको इजीली एक्सेस कर पाए और हमारे डेटा के साथ कोई फ्रॉड ना हो और हम उसको इजीली एक्सेस कर पाए। तो दिस इज अबाउट द डिजिटल सिग्नेचर। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर है वो कंसेप्ट हमने क्यों लाया है, क्योंकि बहुत साइबर क्राइम हो रहा है और टू प्रिवेंट द साइबर क्राइम्स, राइट, टू secure ourselves or a particular organization or in government, सभी को security की requirement है। So for that we invented this concept digital signature process. So there are some other reasons to consider कि हमें digital signature process क्यों use करना चाहिए। जैसे मैंने बोला first of all it is about security. Second कि अगर कोई business चला रहा है, business में आप डेटा यहाँ से वहां डेली का ह्यूज अमाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो एट दैट टाइम पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर यूज नहीं किया है तो क्या होगा, आपका जो मैसेज पास ऑन हो रहा होगा मीन्स वो फॉल्सिफिकेशन मैसेज, गलत मैसेज पास हो सकता है। आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट एनी वैलिडेशन बेनिफिट्स, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड थिंग, यूजिंग digital signature concept, we give and guarantee that a message or a attached document has not been altered during the transfer. कि मैंने यहाँ से इंडिया से एक मेल किया यूएसए, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है इंडिया से यूएसए मेल ट्रांसफर हुआ, अगर उसमें डिजिटल सिग्नेचर मैंने अप्लाई किया हुआ है तो जब तक सामने वाले को वो मेल नहीं मिलेगा तब तक उसमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा। काफी टाइम ऐसा होता है कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऐसे डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है, तो उसके बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी है कि बीच में कोई कुछ चेंजेस कर दे, बट अगर डिजिटल सिग्नेचर आपने वहां पे यूज किया है तो वो कंप्लेन नहीं आएगा। थर्ड थिंग, जैसे रियल लाइफ में आप सिनेरियो देखो कि किसी ने अपना प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट बनवाया और उस पे किसी ने फ्रॉडरी साइन कर दिए, गलत सिग्नेचर कर दिए, और वो उस पर्सन ने नहीं किए, किसी थर्ड पार्टी ने किया। तो टू प्रिवेंट दिस थिंग्स कि पर्टिकुलर वही पर्सन है और वही मैसेज सेंड कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है, तो हमारे यूजिंग दिस डिजिटल सिग्नेचर हम हमारी ऑथेंटिसिटी मीन्स कि पर्टिकुलर पर्सन ने ही हमें मैसेज भेजा है या पर्टिकुलर पर्सन ने ही उस पर साइन किया है, वो एक पर्टिकुलर मैसेज एक्सेस मिल जाएगा। ओके, उसके बाद टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मीन्स कि कुछ ऐसे मेथड्स है इन नॉन रेपुटेशन दैट प्रोवाइड्स अ टाइम स्टैम्प that cannot be altered and provide evidence of the digital signature in case the private key has been compromised or revoked. टाइम स्टैम्प मीन्स जैसे कि कुछ यूज कर रहे हो और उस पे जैसे आप फोटो क्लिक कर रहे हो और वहां पे नीचे कैसे टाइम आ जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ टाइम स्टैम्प। सिमिलर थिंग डिजिटल सिग्नेचर के साथ होती है कि किसी ने प्राइवेट की अक्कर की है, उस प्राइवेट की को हम अगर टाइम स्टैम्प के साथ अटैच कर देंगे तो उसको ना ही कोई वापस रिवॉक कर पाएगा, ना ही उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, ना ही उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो दिस आर द बेनिफिट्स जो आपको डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड कर रहा है compared to your local signatures or an handwriting signature. तो डिजिटल सिग्नेचर के बहुत सारे बेनिफिट्स है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई फॉल्स मैसेज नहीं भेज पाएगा, फॉल्स डेटा नहीं भेज पाएगा, गलत डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, देन कोई फ्रॉडरी नहीं कर पाएगा,
कि आपके आपके सिग्नेचर का यूज करके कहीं से भी कोई उल्टा फुल्टा काम कर लिया। सो दिस आर द थिंग कि आप अपने साइबर स्पेस में मीन्स जब भी इंटरनेट यूज कर रहे हो, जब एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, सो उनके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। So this is all about the digital signatures, and जैसे हमने हैश algorithm देखा, there are many different type of the cryptographic algorithms जो support करते हैं साइबर लॉज को और enhance करने के लिए. So we'll see that cryptographic algorithms in the next lecture. If you guys have any doubt regarding the digital signatures, you can put your question in comment box. Thank you so much for today's lecture.